Hello girls. Next assignment is convert given binary tree into threaded binary tree. Okay, so first of all what you have to do is create a binary search tree using or accepting data from user. So as usual, normal insert function, create and insert function will be used for this. Now you all are familiar with this, how to create a binary search tree from the given data. Initially this is root. Whenever you want to insert new node, compare the data of that node with this root node. If the data is less than root node, then insert in left, else insert in right. For this purpose, recursive function is called. Now what we have to do, we have to use one array where we are going to store in-order traversal. This in-order traversal is used for providing threading. So how we are providing threading? Consider this node. This is the first node in this array. So its left is always root, and if its right is, if the right it doesn't have any right child, means its arbit is 0. So provide threading to its in-order successor. तो 3 का in-order successor कौन सा है? 15. So provide thread to 15. नेक्स्ट नोड कंसिडर करो 15 को लेफ्ट चाइल्ड भी है, राइट चाइल्ड भी है, सो लीव इट. नेक्स्ट नोड इज 20. सो 20 को लेफ्ट इन ऑर्डर प्रेडिसेसर एंड राइट इज इन ऑर्डर सक्सेसर. सो 20 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर 15, 20 is in order successor is 25. So according to that, threading is provided. So in this way we are converting tree to threaded binary tree. So this code, see here, initially see main function first. In main function there is a call to create function, then in order traversal is printed. This is used for printing in order traversal, and this is used for creating a tree giving us the information about L bit and R bit. Name of both the function is different, same, but these two functions are different, as this I is capital, this I is small. And then conversion of binary search tree into threaded tree using threading function. Okay, so now first is the create function. So we'll see create function. See, in this create function, enter number of nodes that you want to insert in the binary search tree. It is in variable n. Then enter the tree values using for loop, and one by one values will be entered, and the node will be created and inserted in the binary search tree using insert function. So it is normal insert function. See, create the new node, data put करो, left right null है, अगर root null है तो the node you have created is the first node as called as root, return it. Else क्या करना है? If x is greater than p of data, p is nothing but the root node. So p से greater है तो right में जाओ, else left में जाओ, continuously left और right में जाओ. and then अगर x जो लास्ट नोड है उसके डेटा से ग्रेटर है तो राइट में इंसर्ट करो या फिर लेफ्ट में इंसर्ट करो. सिंपल लॉजिक इज दैट. फॉर एग्जाम्पल, सी हियर, if I want to insert the node 80, what I will do, I will compare this 80 with the root node. It is greater, so traverse here in right. Compare this with 80, again 80 is greater, so इसके right में जाओ, compare 80 with this. Okay, now while traversing, अगर ये मेरा Q है तो ये मेरा P होगा. Compare P and 80. P का डेटा है 60 और ये है 80. सो 80 इज़ ग्रेटर दैन 60. इसके बाद चाइल्ड ही नहीं है, सो क्या करो, अब Q को यहाँ पे ट्रैवर्स करो. P इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट. नाउ P इज़ नल हो जाएगा, बट Q है यहाँ पे. अब 80 इज़ ग्रेटर दैन 60 Q के डेटा से, सो Q के राइट में इंसर्ट करो. एल्स अगर छोटा होता इससे तो लेफ्ट में इंसर्ट किया होता हमने. दिस इज़ द लॉजिक. नाउ इंसर्शन इज डन. नाउ द नेक्स्ट इज print the in order traversal. So this in order function is used for traversing or printing in order traversal of the binary search tree. And then here another in order function is there, where in is one array which holds the
what you can say, information about the node, that its L bit and R bit. So see here, in order traversal, in order T of left, if T is not null, in order T of left, T means our root node. So ये हमारा रूट नोड हो गया. सो T इज़ नॉट नल, तो इसके लेफ्ट में जाओ. T इज़ नॉट नल, उसके लेफ्ट में जाओ. तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गए. सो नाउ आर T इज़ दिस. सो करना क्या है नेक्स्ट, T का लेफ्ट नल हो गया, सॉरी T ऑफ लेफ्ट नल हो गया. सो यहाँ पे आओ, इन n प्लस प्लस, इनिशियली n इज़ ज़ीरो, सो वो इंक्रीमेंट हो गया और T वहाँ पे मूव किया हमने उस एरे में. नाउ इफ़ T ऑफ लेफ्ट इज़ नल, T ऑफ L बिट इज़ ज़ीरो, मीन्स T जो नोड है, जो नोड की इंफॉर्मेशन हमने एरे में मूव की है, तो उसका L बिट ज़ीरो किया. ओके अगर लेफ़्ट नल नहीं है तो उसका L बिट हम 1 बनाएंगे. मीन्स ये जो है इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका L बिट 0 आएगा, इसके राइट में भी कुछ नहीं तो इसका L बिट भी 0 ही आएगा. सो अगर किसी नोड का L बिट 0 है तो हमें पता चलता है कि उसे कोई भी चाइल्ड नहीं है, अब उसे थ्रेडिंग प्रोवाइड करनी है. अगर किसी नोड का L बिट 1 है, फॉर एग्जांपल 15 का L बिट भी 1 है, 15 का R बिट भी 1 है, बिकॉज इट हैज़ नॉर्मल चिल्ड्रन. यस, सो दिस इज़ डन यूजिंग दिस कोड. सिमिलर वे T ऑफ राइट, अगर T ऑफ राइट नल है तो 0 मूव करो, एल्स 1 मूव करो. ओके नाउ ये कंप्लीट हो गया. अगर इसका राइट नल नहीं है तो राइट में ट्रैवर्स करो, बट इसका राइट नल है तो वो, ये रिकर्सिव फंक्शन है तो फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा. अब इस दोनों के L बिट क्या सेट होंगे, इसका L बिट 1 सेट होगा, इसका राइट नल नहीं है तो ये इसके राइट में जाएगा, इसके राइट में जाके देखेगा, L बिट को 0 सेट करेगा, R बिट को 0 सेट करेगा. अब इसके बाद वो यहाँ पे आएगा और इसका R बिट 1 सेट करेगा. ये कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ पर आएगा, इसका L बिट 1 सेट करेगा बिकॉज इस नोड का लेफ़्ट नल नहीं है. उसके बाद फिर वो राइट में जाएगा यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर T ऑफ राइट. ये T के राइट में जाएगा. नाउ इसका L बिट और R बिट सेट करेगा, L बिट इज़ 1, R बिट इज़ 1. देन वो इसके एक्सट्रीम लेफ़्ट में, मीन्स यहाँ पे आने के बाद वो पहले इसके एक्सट्रीम लेफ़्ट में जाएगा. लेफ़्ट में जाने के बाद इसका L बिट 0, R बिट 0. अगर राइट चाइल्ड होता तो ये इसके बाद इसके राइट में जाता. नाउ देयर इज़ नो राइट चाइल्ड सो इट विल मूव हियर. इसका L बिट सेट करेगा, R बिट सेट करेगा और इसके राइट में जाएगा, इसके लेफ़्ट में जाएगा. इसे लेफ़्ट है नहीं तो L बिट इज़ 0, R में राइट में जाएगा बट R इज़ ऑल्सो 0. ओके सो इन दिस वे L बिट एंड R बिट इज़ सेट यूजिंग दिस फंक्शन. कौन से एरे में, इन ऑफ एरे में. नाउ अब हमें थ्रेडिंग प्रोवाइड करनी है. सो थ्रेडिंग में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी, एवरी टाइम वी हैव सम हेड नोड बिफोर रूट, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट हेड नोड हैविंग नेम रूट. रूट के लिए एक न्यू नोड क्रिएट होगा. रूट ऑफ डेटा इज़ 0, रूट ऑफ L बिट इज इक्वल, रूट ऑफ L बिट इक्वल्स टू रूट ऑफ R बिट इज इक्वल्स टू 1. दोनों के L बिट एंड R बिट 1 सेट किए. वाई, सी हियर, दिस इज़ द रूट नोड जिसका डेटा 0 है. ये हमारा रूट नोड है. सो इसका डेटा 0 है, इसका L बिट 1 है बिकॉज रूट के लेफ़्ट में हम हमारा ट्री जो है वो कनेक्ट करने वाले हैं. इसका L बिट भी 1 किया है. क्यों, बिकॉज इट विल पॉइंट टू इट सेल्फ इन दिस वे. सो हियर द सेम थिंग इज़ डन. रूट ऑफ डेटा इज़ 0, रूट ऑफ L बिट, रूट ऑफ R बिट इज़ 1, रूट ऑफ लेफ्ट इक्वल टू T और रूट ऑफ राइट इक्वल्स टू रूट, मीन्स रूट उसी को पॉइंट करेगा. नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमारे पास है. सो उसके फर्स्ट नोड एंड लास्ट नोड को पहले थ्रेडिंग प्रोवाइड करनी है. सो उसका फर्स्ट नोड जो है, हमारे केस में फर्स्ट नोड कौन सा है, 3, ये वाला. यस, सो इसे हमें थ्रेडिंग देनी है. तो इसका L बिट हमेशा, इसका लेफ़्ट हमेशा रूट को पॉइंट करेगा और इसका राइट कहाँ पे आएगा, इसके इन ऑर्डर सक्सेसर को. और लास्ट नोड में
लास्ट नोड का राइट इज ऑलवेज पॉइंट टू द रूट एंड लेफ्ट विज ऑलवेज पॉइंट टू इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। सो ये यहीं पे वही किया है, क्यू में लिया है इन ऑफ ज़ीरो। इन ऑफ ज़ीरो मीन्स पहला 3 वाला जो डेटा है वो क्यू में आ गया। अब क्यू ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू रूट, सो क्यू ने हेड नोड को पॉइंट किया और जस्ट यहाँ पे प्रिंट किया है थ्रेड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू मीन्स 3 का जो लेफ्ट है वो रूट है, यहाँ पे प्रिंट किया। इफ़ क्यू ऑफ आर्बिट इज ज़ीरो मीन्स राइट चाइल्ड नहीं है, सो क्यू ऑफ राइट इक्वल्स टू इन ऑफ 1। इन ऑफ 1 मीन्स क्यू क्या है, इन ऑफ 0 है। अगर ये हमारा इन है तो इन ऑफ 0 3 है, इन ऑफ 1 है। 3 इसका राइट चाइल्ड नहीं है तो ये किसे पॉइंट करेगा, इसके इन ऑर्डर सक्सेसर को। सो यहाँ पे पॉइंट करेगा वो 15 को, सी ये 3 15 को पॉइंट होना चाहिए। सो दैट्स वाई ये 15 कहाँ पे है, अगर 3 0 पे है तो 15 1 पे है, इन ऑफ 1 पे। दैट्स वाई क्यू ऑफ राइट इक्वल्स टू इन ऑफ 1 और वो थ्रेड यहाँ पे प्रिंट किया है। नेक्स्ट, नाउ लास्ट नोड इज रिमेनिंग, सो q equals to in of n minus 1. n gives you total number of nodes in the array, in array. उसका लास्ट नोड मिलेगा आपको q में। अब लास्ट नोड का l बिट 0 है तो वो किसे पॉइंट करेगा, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को। सो इन ऑर्डर q ऑफ लेफ्ट इक्वल टू इन ऑफ n माइनस 2। n माइनस 1 लास्ट नोड है, उसका प्रीडिसेसर n माइनस 2 पे मिलेगा। ये हो गया लेफ्ट थ्रेड। अब राइट थ्रेड, q ऑफ राइट ऑलवेज पॉइंट्स टू रूट मीन्स हेड नोड। ओके और ये प्रिंट किया है। ये हो गया लेफ्ट लास्ट एंड फर्स्ट नोड के बारे में। अब रिमेनिंग नोड जो है यूजिंग फॉर लूप। अब 1 से स्टार्ट करो n माइनस 1 तक। सो i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n माइनस 1, i प्लस प्लस, q इक्वल्स टू इन ऑफ i मीन्स 1। सो फर्स्ट नोड कौन सा है यहाँ पे, 15 वाला। ओके सो 15 का लेफ्ट एंड आर बिट 1 है तो उसे कुछ नहीं होगा। देन वी विल मूव टू द 20 का लेफ्ट बिट है मीन्स एल बिट एंड आर बिट बोथ आर 0, तो ये इन ऑर्डर प्रीडिसेसर इन ऑर्डर सक्सेसर को जाएगा। सो सी हियर 2 से स्टार्ट करो क्योंकि 15 1 के लिए ये कुछ नहीं होगा। आप 2 से q इज इक्वल्स टू इन ऑफ 2 मीन्स यहाँ पे 20 आ गया q में। इफ़ q ऑफ एल बिट इज़ 0, q ऑफ लेफ्ट इक्वल टू इन माइनस 1। इफ़ q ऑफ आर बिट इज़ 0, q of right equals to in of I plus 1, in of I minus 1 in order predecessor, in of I plus 1 in order successor. In this way for loop में remaining threading provide हो जाएगी। Simple.